ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور بلدیاتی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے شہر کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر سے ملتوی ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ سندھ کابینہ نے مزید 90 روز کی تاخیر سے الیکشن کرانے کی تجویز منظور کر لی ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات 90 روز تک نہ کرانے کے فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ انتخابات مؤخر کرنے کا فیصلہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت کیا گیا ہے۔ شہر کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر سے کھٹائی میں پڑنے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کابینہ نے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن مزید 3 ماہ تاخیر کرانے کی تجویز منظور کر لی ہے اور الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ کراچی ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن ایک بار پھر سے ملتوی ہونے کے امکانات ہیں۔ سندھ کابینہ نے مزید 90 روز کی تاخیر سے الیکشن کرانے کی تجویز منظور کر لی۔ کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے بلدیاتی ایکٹ 2013 کے اختیارات کے تحت 90 روز تاخیر کی تجویز کی منظوری دی ہے۔ سندھ کابینہ سے تجویز کی منظوری کے بعد سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور MQM کا گٹھ جوڑ ہے۔ ڈی جی رینجرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ نفری جمع کر کے شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کروائے۔ سندھ حکومت مسلسل کراچی دشمن اقدامات کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن حتمی طور پر بلدیاتی انتخابات کا اعلان کرے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ اسمبلی میں وڈیروں کی اکثریت ہے جو کراچی کے شہریوں کا مسلسل استحصال کرتی آ رہی ہے۔ کراچی کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے۔ کراچی پر ایک ناجائز ایڈمنسٹریٹر کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کا گٹھ جوڑ ہے۔ ڈی جی رینجرز سندھ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نفری جمع کر کے شہر کراچی میں انتخابات کروائیں۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے ناجائز ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب بتانا پسند کریں گے کہ ہورڈنگ کا پیسہ KMC کے پاس جمع ہونے کے بجائے کن 3 افراد کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ 15 ارب روپے کے بجٹ سے جو سڑکیں بنائی جا رہی ہیں وہ غیر معیاری ہیں۔ جو پیچ ورک مرتضی وہاب صاحب کروا رہے ہیں 15 ارب روپے سے، اس کی حقیقت جہانگیر روڈ پہ دیکھ لیجئے، یونیورسٹی روڈ پر دیکھ لیجئے، گلی محلوں میں دیکھ لیجئے، جہاں جہاں وہ پیچ ورک ہو رہا ہے وہاں سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں۔ پھر آپ ناجائز طریقے سے مسلط بھی رہیں، اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی جماعت اسلامی کا بینر آپ کو نظر آ جائے۔ آپ اپنی پارٹی کے بینر لگا دیں۔ آپ ان ہورڈنگ کے ذریعے سے کروڑوں روپے لوگ جو کرپشن کر رہے ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن ہورڈنگز پر جماعت اسلامی کے 4 بینر مرتضی وہاب کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ان سینکڑوں ہورڈنگ کے پیسوں کا حساب دیں۔ KMC میں جمع کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ ذرا وضاحت کریں وہ کون 3 افراد ہیں کہ جو اس کے پورے کروڑوں روپے ماہانہ کھا رہے ہیں، اور اس میں مرتضی وہاب صاحب کا کیا رول ہے؟ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت دشمن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس لیے افسوس کی بات یہی ہے کہ ایک طرف جماعت اسلامی اور کراچی کے عوام ہیں، اور دوسری طرف تمام پارٹیاں ہیں۔ زبانی جمع خرچ کے طور پر کچھ پارٹیاں ضرور بات کر رہی ہیں، لیکن جتنا بڑا مینڈیٹ لوگوں کے پاس موجود ہے، اس مینڈیٹ کے مطابق کراچی کی ترجمانی کوئی پارٹی نہیں کر رہی، کسی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی۔ زبانی جمع خرچ اور چند بیانات دے کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی اب کراچی کے لوگوں کو خود لڑنی ہے، اپنے حق کے لیے، اپنے اختیار کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ آپ حال تو دیکھیں، نہ کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ کراچی میں الیکشن کروا کر عوامی نمائندوں کو ان کا حق دیا جائے۔ کیمرامین سید تابش کے ساتھ ذوالفقار پیرزادہ، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر الزام عائد کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے کہنے پر چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے 3 مرتبہ تبدیل کر کے اپنی ریٹ ضائع کر دی۔ سندھ سے پولیس اسلام آباد جا سکتی ہے، لیکن شہر کراچی میں پولیس الیکشن نہیں کروا سکتی۔ گورنر نے اگر بلدیاتی آرڈیننس پر دستخط کیے تو یہ MQM کا ڈیڈ
डेड वारंट होगा। ये ऑर्डिनेंस आर्टिकल 140A की नफी करता है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के कहने पर चल रहा है। फिरदौस शमीम नकवी ने इल्जाम लगा दिया, कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले 3 मरतबा तब्दील करके अपनी रेड जाया कर दी। सिंध से पुलिस इस्लामाबाद जा सकती है, लेकिन कराची में इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। गवर्नर ने अगर बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए तो ये MQM का डेड वारंट होगा। ये ऑर्डिनेंस आर्टिकल 140A की नफी करता है। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि 3 बार इलेक्शन मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पर चल रहा है। रूल 34 को खत्म करके कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या इस वक्त का कानून बल्दियाती निजाम को फाइनेंशियली इंपावर करता है, जिस सूबे में 2007 के बाद से PFC का अवार्ड नहीं हुआ? क्या एडमिनिस्ट्रेटिवली इंपावर करता है, जबकि जस्टिस गुलजार ने कहा कि KDA का कानून को वापस लो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कानून को वापस लो, मास ट्रांजिट के कानून को वापस लो। ये फैसले के हिस्से हैं। ये इतलाक करना उन पे लाजिम मलजूम था। और इसके ऊपर मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इसको मानते हैं, ऑर्डर को। वो नहीं किया। फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी कोई लिहाज नहीं। सिंध से पुलिस इस्लामाबाद जा सकती है तो दीगर सूबों से सिंध क्यों नहीं आ सकती है? कि सिंध से पुलिस इस्लामाबाद जा सकती है, इतनी वाफिर पुलिस है, लेकिन इतनी पुलिस नहीं है कि कराची में इलेक्शन कराया जा सके। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिन इलाकों में फ्लड नहीं आया हुआ पाकिस्तान के, वहां से अगर सिंध से इस्लामाबाद पुलिस जा सकती है तो पंजाब से, KP से, आजाद कश्मीर से, बलोचिस्तान से पुलिस कराची क्यों नहीं आ सकती? PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार कहते हैं कि हमारे 4 मुतालबात पर अवामी राय के लिए कैंप्स लगाए जाएंगे। हर कराची वाला, हर पाकिस्तानी इस पेटिशन को साइन करेगा और ये लाखों की तादाद में ये पेटिशन हमारे कैंप्स में ये साइन होंगे। ये जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन हमारे कैंप्स जो हमारे टाउन के सुदूर हैं और जो हमारे MNAs और MPAs हैं उनकी वो लीड करेंगे तमाम कैंप्स में। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस अराई, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और अब शामिल करेंगे अदालती खबर। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ समाअत की है, जबकि 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। अदालत ने सूबा इलेक्शन कमिश्नर IG सिंध पुलिस और चीफ सेक्रेटरी सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। अदालत ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध, IG सिंध पुलिस और चीफ सेक्रेटरी सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर, IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी को 14 नवंबर को पेश होने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा है कि एडवोकेट जनरल सिंध पुलिस और रेंजर्स की नफरी से मुतालिक तफसीलात पेश की जाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है, जबकि इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इकदाम और शहर कायद के तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है, जबकि इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इकदाम और शहर कायद के तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया।
खबर शामिल करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चाइनीज़ पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप के वफ्द की मुलाकात हुई है, जिसमें पाक चाइना मजबूत ताल्लुकात और सी पैक से मुताल्लिक मंसूबों पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि चाइना से मजबूत दोस्ती की बुनियाद शहीद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। चाइना के साथ एक मजबूत दोस्ती और वसी पार्टनरशिप है जो सी पैक के साथ बढ़ती जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चाइनीज़ पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप के वफ्द की मुलाकात हुई है। पाक चाइना मजबूत ताल्लुकात और सी पैक से मुतालिक मंसूबों पर भी तफसीली बातचीत की गई है। मुराद अली शाह ने कहा कि चाइना से मजबूत दोस्ती की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, जबकि चाइना के साथ एक मजबूत दोस्ती और वसी पार्टनरशिप है जो सी पैक के साथ बढ़ती जा रही है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की फेडरेशन हाउस में सनतकारों से मुलाकात हुई है, जबकि ताजिर बिरादरी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से अपने मसाइल बयान किए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची मुल्क का मुआशी हब है। ये शहर मुल्क की मईशत में 70% शेयर डालता है। हम यहाँ की सनतों और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर उनके देरीना मसाइल हल करेंगे। सिंध हुकूमत हमेशा ताजिर बिरादरी की बेहतरी के लिए कोशा है। मुर्तज़ा वहाब ने साथ ही साथ ये भी कहा कि बिजनेस कम्युनिटी को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की फेडरेशन हाउस में सनतकारों से मुलाकात हुई, जबकि ताजिर बिरादरी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से अपने मसाइल बयान किए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची मुल्क का मुआशी हब है। ये शहर मुल्क की मईशत में 70% शेयर डालता है। हम यहाँ की सनतों और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर इनके मसाइल हल करेंगे। सिंध हुकूमत हमेशा ताजिर बिरादरी की बेहतरी के लिए कोशा है। बिजनेस कम्युनिटी को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। और यहाँ खबर शामिल करेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से। आपको बताएं कि पानी चोरों और कब्जा माफिया के खिलाफ वाटर बोर्ड का अहम इकदाम सामने आ गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने एडिशनल आईजी सिंध पुलिस को खत लिख दिया है, जबकि खत के मतन में कहा गया है कि सिंध पुलिस को गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए जल्द अज जल्द मुस्तकिल बुनियादों पर पाबंद किया जाए। सैयद सलाहुद्दीन अहमद के लिखे गए खत के मतन में यह भी बताया गया है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान वाटर बोर्ड हुकाम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए, जबकि पानी चोर माफिया और जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन में वाटर बोर्ड के साथ भरपूर ताउन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर के इर्द गिर्द सिर्फ 8 कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद हैं। पानी चोरों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अहम इकदाम सामने आ गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने एडिशनल आईजी सिंध पुलिस को खत लिख दिया। खत के मतन में बताया गया है कि सिंध पुलिस को गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए जल्द अज जल्द मुस्तकिल बुनियादों पर पाबंद किया जाए, जबकि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान वाटर बोर्ड हुकाम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। पानी चोर माफिया और जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन में कराची वाटर बोर्ड के साथ भरपूर ताउन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर के इर्द गिर्द सिर्फ 8 कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद है। पानी चोरों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ वाटर बोर्ड का अहम इकदाम सामने आ गया है। सीईओ वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने एडिशनल आईजी सिंध पुलिस को खत लिख दिया, जबकि खत के मतन में कहा गया है कि सिंध पुलिस को गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए जल्द अज जल्द मुस्तकिल बुनियादों पर पाबंद किया जाए।
خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر قانونی ہائیڈرینٹس اور تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کے دوران کراچی واٹر بورڈ حکام کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے، جبکہ پانی چور مافیا اور زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن میں کراچی واٹر بورڈ کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کے ارد گرد سے 8 قانونی واٹر ہائیڈرینٹس موجود ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے۔ ایسے میں بلدیہ عظمی کراچی کے انسداد تجاوزات سیل نے کراچی کے ڈسٹرکٹ کورنگی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپریشن کیا ہے، جبکہ کورنگی ڈویژن میں ایس ایل پلاٹ سے قبضہ واگزار کروا کے غیر قانونی تعمیرات منہدم کر دی ہیں، جبکہ دوسری جانب نارتھ کراچی یو پی موڑ پر ڈپارٹمنٹل اسٹور سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جبکہ کارروائیوں کے دوران ٹھیلے پتھارے اور دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ کورنگی ڈویژن میں پلاٹ پر ہونے والے قبضے کو ختم کروا کے دیواریں مسمار کر دی گئیں۔ کارروائی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ کورنگی سلیم رضا نے اسسٹنٹ کمشنر کورنگی اور کورنگی ڈویژن انچارج ندیم نواب کے ہمراہ کی۔ یو پی موڑ نارتھ کراچی پر نجی ڈپارٹمنٹل اسٹور پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی، جس میں سامان ضبط کر کے کے ایم سی اسٹور میں جمع کرا دیا گیا۔ یہ کارروائی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی ڈسٹرکٹ سینٹرل کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ یونس خان محبوب شاہ نے عملے کے ہمراہ کی۔ لانڈی ڈویژن 11,000 روڈ پر نوٹس تقسیم کیے گئے اور قانونی حدود میں رہنے کے لیے بھی پابند کیا گیا۔ تمام کارروائیوں میں اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس بھی موجود تھی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب رخ کریں گے ضلع وسطی کے علاقے لیاقت آباد کا، جہاں حکومتیں بدل گئیں لیکن سسٹم نہ بدل سکا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ لیاقت آباد کی تباہ حال سڑکوں اور گلیوں کی اب تک قسمت نہ بدلی ہے۔ ہر گلی میں سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے، جبکہ کھلے مین ہولز انسانی جانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ سیوریج کا بہتا پانی، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کچرے کے ڈھیر انتظامیہ کی کارکردگی عیا کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں براہ راست اپنے نمائندے حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری، بتائیے گا، حکومتیں بدل گئیں لیکن لیاقت آباد کی حالت جو ہے وہ جوں کی توں ہے۔ جی ہاں، بالکل شہر کراچی کا یوں تو کہتے ہیں کہ کچرا اٹھانا کا ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو دے دیا گیا ہے، لیکن کروڑوں روپے کا ٹھیکے پہ دینے کے بعد بھی شہر کراچی کے اندر کچرے کے جگہ جگہ ڈھیر نظر آتے ہیں، کئی روز سے جو کہ اٹھتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی جیسا کہ میں موجود ہوں ناظم آباد میں، یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچرے کا ڈھیر لگا ہوا، اور کس طرح یہ لوگ جو ہے درمیان کے اندر جو ہے سڑک پر یہ کچرا پڑا ہوا ہے، جہاں سے لوگ جو ہے نکلنا اور گاڑیوں کا، موٹر سائیکلوں کا جانا تو انتہائی مشکل ہے۔ درمیان میں سڑک کے یہ ہونا کچرے کا، اس کے مطلب یہ ہے کہ لوگ یہاں سے گزر ہی نہیں سکتے، اس کچرے کے ذریعے ہی اس سڑک کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے یہاں کی اور کراچی کی ایسے ہی گلیوں کی، ایسے ہی چھوٹے اندرونی راستوں کی، جہاں پر کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں یا سیوریج کا پانی نظر آتا ہے۔ تو شہر کراچی کے اندر عوام کا جو ہے اس وقت ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بس جیسا کہ صورتحال کراچی کی ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب بھی جو ہم دیکھتے ہیں شہر کراچی کے اندر ایک طرف سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو دوسری طرف ایسے کچرے کے ڈھیر۔ تو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اگر ٹھیکہ دے دیا گیا ہے کروڑوں روپے کا، تو یقیناً جو ہے ان کو مزید متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ڈیلی ویجز پہ ان سے کام لینے سے شہر کراچی کا کچرا یا گندگی نہیں اٹھ جائے گی، بلکہ ان کے جو ہے متحرک کرنے کے بعد ہی جو ہے شہر کراچی کے اندر اس گندگی اور کچرے کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ تو شہر کراچی کے لوگ جو ہے کچرے سے ایک طرف پریشان ہے، دوسری طرف سیوریج کے پانی سے، تیسری طرف ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے۔ تو کراچی کی ابتر صورتحال کو بدلنے کے لیے یقیناً جو ہے ٹھوس حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حفیظ انصاری۔ یوں تو کراچی کے اکثر علاقوں کی سڑکیں، گلیاں سیوریج کے پانی سے بھری نظر آتی ہیں، مگر لیاقت آباد میں تو جس گلی سے گزرو سیوریج کا بہتا پانی، ٹوٹی سڑک، کچرے کا ڈھیر انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ چڑھاتا نظر آتا ہے۔ یہاں سے گزرنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ علاقے مکین کہتے ہیں یہاں جس طرح زندگی گزار رہے ہیں ہمارا دل جانتا ہے، گندے پانی میں جراثیم سے بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ بہت پریشانی ہو گئی ہے۔ لیاقت آباد کے اندر دشوار ہو گیا، نماز پڑھنا دشوار ہو گیا، مسجد کے سامنے پانی،
दुकानों के आगे पानी, कारोबार तबाह हुई है। यहाँ पे 6-7 महीने हो गए हैं, तो गटर का पानी भरा हुआ है, नमाजी जाते हैं उनके लिए भी तंगी है, और औरतें लेडीज़ जो जा रही हैं उनके लिए भी तंगी है। और अपील भी करी है, 2-4 जो हैं लोग आए थे बड़े बड़े, उन्होंने देखा, वीडियो बनाई और चले गए, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद भी। स्कूल को बच्चों को छोड़ना एक मुसीबत बन गई है कि रोज के गिरते हैं, पढ़ते हैं, पता नहीं वो स्कूल तो जाना तो लाजमी है ना बच्चों का, हैं? ये बतलाओ, पहले बीमार वो पड़े में अस्पतालों में के लिए पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है इस महंगाई में, तो ये बतलाओ पहले यहाँ की बीमारी को कैसे हम बर्दाश्त करें। एक जानिब यहाँ रहने वालों की जिंदगियां अजीरन हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ दुकानदारों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर है। कैमरामैन मंसूर बनारसी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि शहर कायद का मशहूर मारूफ जहांगीर रोड एक बार फिर से तबाही के दहाने पर पहुंच गया। बार बार तामीर के बावजूद भी जहांगीर रोड की किस्मत ना बदल सकी है। जहांगीर रोड का एक ट्रैक टूट फूट के बायस तबाह हो गया, जबकि जहांगीर रोड से मुत्तसिल नाला भी कचरे से भर गया है। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश ने खस्ता हाल सड़क से गुजरना भी मुहाल कर दिया है, जबकि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी मकीन सहूलियात को तरसने लगे हैं। बार बार तामीर के बावजूद भी जहांगीर रोड की किस्मत ना बदल सकी। अभी कुछ अरसे पहले ही ये रोड तामीर हुआ था, जबकि नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की कलई जो है वो खुल चुकी है, और जहांगीर रोड का एक ट्रैक टूट फूट के बायस अब तबाह हो गया है, जबकि जहांगीर रोड से मुत्तसिल नाला भी कचरे से भर गया है। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश ने खस्ता हाल सड़क से गुजरना भी मुहाल कर दिया है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी मकीन सहूलियात को तरस रहे हैं। बार बार तामीर के बावजूद भी जहांगीर रोड की किस्मत ना बदल सकी। जहांगीर रोड एक बार फिर से तबाही के दहाने पर पहुंच गया। जहांगीर रोड का एक ट्रैक टूट फूट के बायस तबाह हो गया है, जबकि जहांगीर रोड से मुत्तसिल नाला भी कचरे से भर गया है। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश ने खस्ता हाल सड़क से गुजरना मुहाल कर दिया है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मकीन सहूलियात को तरस रहे हैं। जहांगीर रोड एक बार फिर से तबाही के दहाने पर पहुंच गया। बार बार तामीरात के बावजूद भी जहांगीर रोड की किस्मत ताहाल ना बदल सकी है। जहांगीर रोड का एक ट्रैक टूट फूट के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जहां से कोई भी शख्स जो है बखैर आफियत नहीं गुजर पा रहा है, और ये सड़क अब बिल्कुल भी आम लोगों के इस्तेमाल के लिए महफूज नहीं है। जबकि इंतजामिया ने जो इसमें मटीरियल इस्तेमाल किया है उसकी कलई कुछ ही दिनों में खुल गई है। जहांगीर रोड से मुत्तसिल नाला भी कचरे से भर चुका है। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश ने खस्ता हाल सड़क से गुजरना मुहाल कर दिया है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मकीन सहूलियात को तरस रहे हैं। कराची का जहांगीर रोड, जो कि एक मशहूर और मारूफ रोड है, एक बार फिर से तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। जबकि अब से कुछ अरसा पहले ही इस रोड की तामीरात की गई थी, इस सड़क की असर नौ तामीर की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जहांगीर रोड की किस्मत नहीं बदल सकी है। जहांगीर रोड का एक ट्रैक टूट फूट के बायस तबाह हो गया, जहां से गुजरना मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों में गुजरने वालों के लिए मुहाल हो गया। जहांगीर रोड से मुत्तसिल नाला भी कचरे से भर गया है, जबकि स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश ने खस्ता हाल सड़क से गुजरना मुहाल कर दिया है। और अब रुख करेंगे जिला कोरंगी का। आपको बताएं कि कोरंगी नंबर 5 में सीवरेज के बायस सड़कें मुकम्मल तौर पर ज़बूहाली का शिकार है। शहर कायद में जाबजा मसाइल ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सीवरेज के पानी के बायस सड़कें ज़बूहाली का शिकार है। मोटरसाइकिल सवारों का गिरना और गाड़ियों का फंसना मामूल बन गया। इंडस्ट्रियल जोन होने के बावजूद यहाँ की सड़कों की मुरम्मत ना होना मुतालिका इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। आपको बताएं कि शहर कायद में जाबजा मसाइल ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सीवरेज के बायस सड़कें ज़बूहाली का शिकार हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवारों का गिरना और गाड़ियों का फंसना भी अब मामूल बन गया है। इंडस्ट्रियल जोन होने के बावजूद यहाँ की सड़कों की मुरम्मत ना होना मुतालिका इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है।
कराची में जा बजा मसाइल ने आवाम की मुश्किलात में किया इजाफा। कोरंगी नंबर 5 पंपिंग स्टेशन के करीब सीवरेज का पानी खड़ा रहने से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिसके बायस डगमगाती गाड़ियां और उनका गड्ढों में फंस जाना मुकद्दर बन गया है। इंडस्ट्रियल जोन होने के बावजूद यहाँ की सड़कों की मरम्मत न होना मुतालिका इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। आवाम का कहना है कि नाले ओवरफ्लो हो जाने से अक्सर यहाँ पानी जमा रहता है। कोरंगी 5.5 है, ये रोड 5.5 से लेके मच्छी मोड़ तक जा रहा है। जगह जगह खड्डे हैं और जगह जगह इसमें मतलब बारिश का पानी भर जाता है। रोजाना कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, हादसा हो जाता है। इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ बड़ी लेन के खड्डे खुदे हुए, आए दिन हादसा, आए दिन मोटरसाइकिल वाले बाइक वाले गिरते रहते हैं। पानी तो काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, ये बहते रहता है। ये वाटर पंप का पानी है, ये यहाँ से एकदम भर के जब लाइट जाती है तो जब पानी खुलता है यहाँ पे ओवरलोड हो जाता है पानी। हमने यहाँ पे एक ये गटर भी बनाया है छोटा सा यहाँ जाने के लिए। यहाँ पे गाड़ी आती नहीं है, वन में वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं आए दिन। मसला ऐसा है, अभी बारिश, अभी पानी है, अभी थोड़ा ये लोग लाइट जाएगी ना, अभी शाम के टाइम या मगरिब के बाद पानी खोलते हैं, इस गेट से पानी बेचते हैं और बाकी जब पानी खोलते हैं ये लोग आवाम को नहीं पहुंचाते, पानी बाहर आता है तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे गाड़ियाँ वाले आ रहे होते हैं, उनको दिख रहा नहीं होता। पहले तो ये रोड चलता नहीं है और जो मजबूरन लोग आ रहे होते हैं तो वो जाहिर सी बात है गड्ढे में गिरते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि सड़क खराब होने से ट्रैफिक जैम के मसाइल भी हैं, मगर मजाल है जो कोई महकमा यहाँ पर नजर डाले। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब से मुतालबा है कि कराची की दीगर सड़कों की तरह यहाँ की सड़क की भी तामीर करके कामों को फिलफौर मुकम्मल किया जाए। और यहाँ आपको बताते चलें कि कराची के इलाके मलीर सौदाबाद में जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। तरक्याती काम के नाम पर पूरा ही इलाका खोद कर छोड़ दिया गया है, जबकि एक तरफ की सड़क कई अरसे से तरक्याती कामों के नाम पर बंद है, जबकि एक सड़क से गुजरकर शहरी अपने घरों को जाने पर मजबूर है। मलीर सौदाबाद कब्रिस्तान के अतराफ सड़कों से गुजरना आवाम के लिए कड़ा इम्तहान बन गया। कराची के इलाके मलीर सौदाबाद में जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है, जबकि तरक्याती काम के नाम पर पूरा ही इलाका खोद दिया गया है। एक तरफ की सड़क कई अरसे से तरक्याती कामों के नाम पर बंद है, जबकि एक सड़क से गुजरकर शहरी अपने घरों पर जाने पर मजबूर है। आपको बताएं कि मलीर सौदाबाद कब्रिस्तान के अतराफ सड़कों से गुजरना आवाम के लिए अब इम्तहान बन गया है। यह है कराची का इलाका मलीर सऊदाबाद। तरक्याती कामों के नाम पर पूरा ही इलाका खोद दिया गया है। एक तरफ की सड़क कई अरसे से तरक्याती कामों के नाम पर बंद है, एक सड़क से गुजरकर शहरी अपने घरों पर जाने पर मजबूर हैं। कुछ ऐसे ही मनाजिर मलीर सऊदाबाद कब्रिस्तान के अतराफ में भी नजर आते हैं, जहाँ पर धूल मिट्टी से भरी सड़कें आवाम को खुशामदीद करती नजर आती हैं। मकीनों का कहना है कि ऐसा लगता है कि इलाके को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। भाईजान रोड के बारे में कह जाएंगे, रोड बहुत बुरी हालत हुई हुई है। यहाँ की लेडीज आती है, गिरते हैं बच्चे गिर जाते हैं, रक्शे आए दिन कल्टी होते रहते हैं। यहाँ पे मस्जिद है, कब्रिस्तान है, सब चीज़ें बहुत परेशानी हो रही है। घरों के अंदर धूल मिट्टी बहुत जाती है, यहाँ बैठना परेशान है, पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो 2.5 साल से रोड टूटा हुआ है सारा ना, मलीर 15 से लेके और अपना सऊदाबाद तक। तो इस पे इतनी गर्द मिट्टी उड़ती है कि लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे हम भी दुकानदार हैं इसी रोड के ना, सारा दिन मिट्टी हम लोग खाते हैं। इससे पहले अभी गटर लैंड डाली थी, वो गटर वालों ने भी सारे गड्ढे छोड़ दिए। मजीद इसके अंदर लोग गाड़ी पे, बाइक वाले सुबह ड्यूटियों पे जाते हैं, वो गिरते हैं, लेडीज बच्चे। पानी की लाइनें यहाँ पर टूटी हुई है। आए दिन यहाँ पर ना एक दिन बीच करके पानी खोला जाता है और पानी जो है ना इतना बुरी तरह से बैठता है कि लोगों के पास अगर वो पानी पहुँचेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। रोड इतना ख़राब हुआ हुआ है कि यहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल काम है। तो पूरा दिन मिट्टी उड़ती है, पूरा दिन जो है ना मिट्टी में गर्द गुबार में जो है ना बुरा हाल हो जाता है। तो गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील है कि भाई इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। आवाम का कहना है कि तरक्याती कामों को कई साल हो गए हैं, मगर काम मुकम्मल होकर नहीं दे रहा। हमारा मुतालबा है कि सड़कों को, जो कि बोसीदा सीवरेज का निजाम है, इसे फौरी ठीक किया जाए और इसके लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पार्टी क़यादत ने जो जिम्मेदारी मेरे सपुर्द की है उसकी अदायगी मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर या ज़िला कौंसिल कराची में किसी भी गलत काम को दुरुस्त करना मेरे फ़राइज़ का हिस्सा है। ज़िला कौंसिल के मरकजी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोकी और चीफ ऑफिसर
ایاز حمیداللہ بلوچ کے ہمراہ مہینہ وار محکمہ جاتی کارکردگی کو جانچنے کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ ہمارا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے جس کی بنیادوں پر قیادت کی قربانیاں شامل ہیں جو انہوں نے عوامی حقوق کی خاطر دی ہیں. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس میں ذرہ برابر بھی کمی کریں؟ کچھ امور ذہن نشین کر لیں کہ ترقیاتی بجٹ ہر یونین کونسل کا مساوی کریں، ہر کام کی اجازت متعلقہ حکام سے لیں، باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر یونین کونسل کے دورے شروع کر رہے ہیں. جس سائٹ پر جائیں گے وہاں کی فائل موجود ہو، جو شکایات موصول ہوئی ہے یا نظر آئی ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہونی چاہیے. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت سندھ کے احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے مثالی اقدامات کیے ہیں. ملیر کی قیادت کو بھی مایوس نہیں کریں گے. ہم سب کو مل کر علاقے کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. جو غفلت برتے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا. جو ہوا وہ ماضی تھا اور جو ہونا ہے وہ مستقبل ہے. اس لیے جتنا ممکن ہو اس میں اپنے تجربات کو بروئے کار لائیں. عوام کی خدمت ہمارا مشن ہے جس پر ہم عمل پیرا ہیں. میونسپل کمشنر ملیر انیس الرحمان سیال نے ایکسپو سینٹر پر آئیڈیاز 2022 دفاعی نمائش کے سلسلے میں وائرلیس گیٹ سے ڈریگ روڈ بلدیہ ملیر کی حدود میں صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا. ایکسپو سینٹر پر آئیڈیاز 2022 دفاعی نمائش کے سلسلے میں وائرلیس گیٹ سمیت اطراف کے علاقوں میں صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر انیس الرحمان سیال کا کہنا تھا کہ ایکسپو سینٹر پر نمائش میں بین الاقوامی مندوبین کی آمد سے قبل وائرلیس گیٹ ڈریگ روڈ بلدیہ ملیر کے حدود میں صفائی ستھرائی اور تجاوزات کا خاتمہ اور گرین بیلٹ کو خوشنما بنایا جا رہا ہے. بین الاقوامی مہمانوں کو بلدیہ ملیر کے حدود میں صاف ستھرا، پرفضا، خوشنما اور دلکش ماحول فراہم کرنا ہمارا منصبی اور اخلاقی فریضہ ہے. افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مزید بولیں کہ آئیڈیاز 2022 دفاعی نمائش سے قبل صفائی ستھرائی اور دیگر امور کے انتظامات کو فوری طور پر حتمی شکل دی جائے. بین الاقوامی مندوبین بلدیہ ملیر کے حدود سے گزر کر ایکسپو سینٹر پہنچیں گے. انہوں نے خوش آمدید کہنے کے لیے اسٹار گیٹ پر استقبالیہ مونومنٹ کی مزید تزئین و آرائش کی جائے. شاہراہوں اور فٹ پاتھوں کی بہترین صفائی کے ساتھ گرین بیلٹ میں خوبصورت پھولوں والے پودے لگائے جائیں. انہوں نے کہا کہ بلدیہ ملیر انتظامیہ بین الاقوامی مہمانوں کو خوشنما ماحول فراہم کرنے میں ہر ممکن کردار ادا کر رہی ہے. اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز KMC مظہر خان، ڈائریکٹر سینیٹیشن نصیر ایوب، EV سلمان قادری اور دیگر بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر میرپور خاص ڈویژن زین العابدین میمن کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ اور مشترکہ کوششوں سے میرپور خاص کی تقریباً 4 تحصیلوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کی جا چکی ہے، جبکہ 3 تحصیلوں سندری، ڈگری، جھڈو کی کچھ UCs میں تاحال پانی کی نکاسی نہیں کی جا سکی. سیلاب کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر میرپور خاص زین العابدین میمن کا کہنا تھا کہ نیشنل انٹرنیشنل NGOs اپنی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ پیش کریں تاکہ ان کو مزید کام کرنے میں آسانی پیدا ہو. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے تفصیلی طور پر بتایا کہ تمام تعلقوں میں سب سے زیادہ مسائل تحصیل سندری کی 5 UCs، ٹاؤن کمیٹی ہنگرنو UC سمارو، جبکہ گرہوڑ شریف اور اسماعیل خبر اور سرل میں درپیش آ رہے ہیں. جبکہ تحصیل ڈگری اور جھڈو کو صاف ہونے میں کچھ وقت لگے گا. ڈگری اور جھڈو سے 4 ڈرین گزر رہے ہیں مگر ان میں سے 1 ڈرین پانی اٹھا رہا ہے. اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنروں، نیشنل انٹرنیشنل NGOs کے نمائندے، اوشا پاکستان کے لالا انیل امرو، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران نے بھی شرکت کی. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر MV راجہ دھاریجو کی زیر صدارت
डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उमरकोट का इजलास हुआ, जिसमें टास्क फोर्स के मेंबरान और ओहदेदारान ने सैलाब की बात की सूरत हाल से आगाह किया। राजधारीजों का कहना था कि उमरकोट में सैलाब मुतासरीन के लिए जो रिलीफ कैंप लगाए गए थे उन तमाम रिलीफ कैंपों को मनसूख कर दिया गया है, जबकि रिलीफ कैंपों में जो अफराद रिहाइश पजीर थे वो तमाम खानदान अपने अपने घरों को वापस जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर एम बी राजधारीजों की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उमरकोट का इजलास हुआ, जिसमें टास्क फोर्स के मेंबरान और ओहदेदारान ने सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। एम बी राजधारीजों का कहना था कि उमरकोट में सैलाब मुतासरीन के लिए जो रिलीफ कैंप लगाए गए थे उन तमाम रिलीफ कैंपों को मनसूख कर दिया गया है, जबकि रिलीफ कैंप में जो अफराद रिहाइश पजीर थे वो तमाम खानदान अपने अपने घरों को वापस जा चुके हैं। हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनक़ाद किया गया। महफिल में मुल्क के नामवर सनाख़ा और उलमा ने ज़िक्र व नात के नजराने पेश किए। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिधा सराई के लिए बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा का इनक़ाद किया गया। महफिल के हवाले से म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद फाकिर शाकिर ने बताया, यहाँ पर हैदराबाद के शहरियों की एक बड़ी तादाद आई है और मुख्तलिफ शहरों से और हमारे जो आलिम हज़रात आए हैं। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है वो बहुत पुरवकार और पुरनूर महफिल का जो है इनेकाद किया है। इस सिलसिले में जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब की और ख़ासतौर पर म्यूनिसिपल कमिश्नर फाकिर शाकिर साहब की और उनकी तमाम टीम की अनथक कोशिशें हैं। इस पुरनूर महफिल में हैदराबाद की मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से ये पुरनूर महफिल सजाने पर बल्दिया के अफसरान की इस काविश को खूब सराहा। बल्दिया आला हैदराबाद ने इस साल की जश्न मिलादुन्नबी का एहतमाम किया और मैं इस मौके पर तमाम बल्दिया के मुलाजिमीन को खास तौर पे डिप्टी कमिश्नर साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ा शानदार प्रोग्राम पेश किया। अल्लाह ताला हमारे सुनने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सबसे पहले तो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बल्दिया आला एडमिनिस्ट्रेटर जनाब फवाद गफ्फार सुमरत साहब, म्यूनिसिपल कमिश्नर फाकिर शाकिर साहब और पूरी टीम इस बात के काबिल सताइश और खराज तहसीन उनको पेश करते हैं कि आका करीम के इस प्यारे महीने के अंदर उन्होंने इतना अजीम शान महफिल का इनेकाद किया। महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा में मुल्क के नामवर सनाख़ाहों ने नाते रसूल मकबूल के नजराने आका की बारगाह में पेश किए, जबकि मुल्क के मशहूर आलिम दीन मौलाना इस्माइल नूरानी ने हुजूर की तालीमात पर रोशनी डाली और महफिल को नूर से मुनव्वर फरमा दिया। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। कराची की पुरानी सब्जी मंडी से लियाकताबाद जाने वाली मरकजी सड़क पर कचरे के अंबार भयानक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड समेत जिला इंतजामिया इलाके को गंदगी से पाक करने में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। शहरियों को वबाई अमराज से बचाना तो होगा कचरे को बर वक्त ठिकाने लगाना। कराची के दीगर अजला की तरह जिला बस्ती में भी कचरे के अंबार भयानक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। लियाकताबाद को पुरानी सब्जी मंडी से मिलाने वाली मरकजी सड़क न सिर्फ कचरे की लपेट में है, वहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और इलाके के वाहिद पार्क में आने वाले शहरी भी सख्त अजियत से दो चार हैं। शहरी कहते हैं बर वक्त कचरे को ठिकाने न लगाना किसी अलमिये से कम नहीं। यहाँ हर फर्द किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है। देखिए, आपने सवाल में एक जुमला इस्तेमाल किया कि स्कूल और कॉलेज हैं। मैं खुद एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ और तंजीम साथ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। ये कचरा जो है ना, तलबा की तालीमी जो कैफियत है उसमें बहुत बुरे असरात मरतब करा। अब आप पूछेंगे कैसे, कि देखिए इस कचरे की वजह से बच्चे मुस्तकिल बीमार हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू तमाम उसमें। तो क्या सूरत हाल क्या है, तालीम पे वो फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। निस से जायद शाहराह पर फैला ये कचरा मच्छरों की अफजाइश के साथ साथ तरह तरह के वबाई अमराज के फैलाव का बाइस बन रहा है, जिस पर हुक्काम बाला समेत जिला वस्ती इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।